Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, the word good faith is defined under which section of the Indian Penal Code? Section 44, Section 47, Section 50 और Section 52. भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सद्भावना शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 44, धारा 47, धारा 50, धारा 52. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 52. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 52. The term good faith is defined under section 52 of the Indian Penal Code. Now, in the Bharatiya Nyaya Sanhita, the term good faith is defined under section 2, subsection 11. सद्भावना शब्द को भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के तहत परिभाषित किया गया है. अब भारतीय न्याय संहिता में सद्भावना शब्द को धारा 2, उपधारा 11 के तहत परिभाषित किया गया है. Next question is, disputes between the states in India come to the Supreme Court under dash jurisdiction: appellate, original, advisory और review. भारत में राज्यों के बीच विवाद डैश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं: अपीलीय, मूल, सलाहकार या समीक्षा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओरिजिनल. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूल. Disputes between the states in India come under the original jurisdiction of the Supreme Court. This is specified in Article 131 of the Constitution of India. भारत में राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 में निर्दिष्ट है. Next question is, which amendment to the Constitution of India added reasonable restrictions to the freedom of speech and expression? First Amendment, Second Amendment, Third Amendment और Fourth Amendment. भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए? पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन या चौथा संशोधन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट अमेंडमेंट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला संशोधन. Recently, in the case of Arijit Singh vs. Audible Ventures LLP, the Bombay High Court restricted the third parties from using Bollywood singer Arijit Singh's voice, likeness, and signature without consent. The First Amendment to the Constitution of India added reasonable restrictions to freedom of speech and expression. हाल ही में अरिजीत सिंह बनाम ऑडिबल वेंचर्स LLP के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीसरे पक्ष को बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह की आवाज, समानता और हस्ताक्षर का बिना सहमति के उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया. भारत के संविधान के पहले संशोधन के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which authority is responsible for adjudicating claims for compensation under the Motor Vehicle Act? Traffic Police, Motor Accident Claims Tribunal, High Court और District Court. मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? यातायात पुलिस, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण. Recently, in the case of Bajaj Alliance General Insurance Company Limited versus Sunita Virendra Sahani, the Kerala High Court ruled that the insurance company's liability remains even without dependency and does not prevent claimants from filing a claim petition. The authority responsible for adjudicating claims for compensation under the Motor Vehicles Act in India is the Motor Accident Claims Tribunal, that is MACT. हाल ही में बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनीता वीरेंद्र साहनी के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी की देयता निर्भरता के बिना भी बनी रहती है और दावेदारों को दावा याचिका दायर करने से नहीं रोकती है. भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण है. द लास्ट क्वेश्चन इज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस इज गिवन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर सेक्शन 406, सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल और सेक्शन 482. दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है. धारा 406, दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची या धारा 482. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फर्स्ट शेड्यूल. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहली अनुसूची. The first schedule of the Code of Criminal Procedure contains a comprehensive classification of offences and provides essential details regarding their handling within the legal system. दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में अपराधों का व्यापक वर्गीकरण है और कानूनी प्रणाली के भीतर उनके संचालन के संबंध में आवश्यक विवरण प्रदान करता है. Before we wrap up, here's a question for you. Judges' power to put questions or order production is provided under the Indian Evidence Act 1872 in
डैश सेक्शन 162, सेक्शन 163, सेक्शन 161 और सेक्शन 165। न्यायाधीश को प्रश्न पूछने या प्रस्तुत करने का आदेश देने की शक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत डैश में प्रदान की गई है। धारा 162, धारा 163, धारा 161 या धारा 165। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।